Hello students, welcome you all. In this video, we will be starting with the chapter number 4, pronouns. So, in even small classes, you have read about pronoun. But in this video, we will be reading pronoun in detailed manner. This video would be interesting. I hope you will like it and listen it very carefully for better understanding. So, let's begin. What is pronoun? A pronoun is a word which is used instead of or in a place of noun. So noun की place में, so basically what is noun? Noun is name, place, animal, thing. तो उनकी जगह पे कोई भी word जो लगेगा that would be called as pronoun or it can be used as to identify or define noun. That word would be pronoun. So let's see the examples. Rita did not come as she was unwell. So here Rita is noun, she is pronoun. The book are there, you left them. So the books are noun and them is pronoun. Umesh failed because he was careless. So he is pronoun. This is Raju, he likes football. So he is pronoun. So जो भी noun है उसके words के बारे में बता रहा है, जैसे रीटा, उमेश एंड राजू, ये तो आपने देख लिया कि किसी पर्सन के नेम है. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग, जो सेकेंड एग्जाम्पल में द बुक, तो उस पर क्या आ जाएगा देम. और ये देम क्यों आया है? क्योंकि इधर लिखा है बुक्स. अगर यहाँ पे आता यू लेफ्ट वन बुक, सो उसकी जगह आता इट, पर यहाँ पे बुक्स लगा है दैट सो दैट इट वुड बी वर्ड जो आएगा देम आएगा. सो विल बी सीइंग कि वाई बुक्स के साथ देम आया है और अगर बुक होती तो इट आता. ये वीडियो के लेटर पार्ट में आपको समझ में आएगा. सो ऑल द कलर्ड वर्ड्स आर प्रोनाउन. तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कलर्ड में जो भी है वो इवन नेम्स भी दिए हुए हैं, रीटा, उमेश. तो इधर से फोर्थ वाले में ही जो है वो सिर्फ कलर्ड है. तो शी, देम, ही, ये हैं प्रोनाउंस. तो ये मिसप्रिंट हुआ है. जो जितने भी आपको नेम्स दिए गए हैं वो प्रोनाउंस नहीं है, वो नाउन है. प्रोनाउंस क्या है? शी, देम, ही. सो लेट्स कंटिन्यू. There are kinds of noun. There are 9 kinds of noun. First is personal noun, interrogative noun, demonstrative noun, possessive noun, indefinite noun, reflexive noun, emphatic noun, distributive noun, relative pronouns. So now we'll be taking a first personal pronoun. So what is personal pronoun? A pronoun which stands for a person or a thing is called personal pronoun. So here जो ये personal pronoun है, so फर्स्ट अपन ने देखा नाउन एज अ कंप्लीट. नाउन में जो जितने भी उनकी जगह जो वर्ड्स लगेंगे वो प्रोनाउन है. बट पर्सनल प्रोनाउन कहाँ लगेगा? पर्सन के लिए और थिंग के लिए, नॉट एनिमल, नॉट प्लेस. सो लेट्स सी. There are 3 person, first person, second person and third person. So what is first person, second person and third person? Let's see. The first person is the person speaking. The second person is the person spoken to. The third person is the person or thing about. The various form of the personal pronouns. तो वेरियस फॉर्म्स तो अपन लेटर ऑन करेंगे, बट फर्स्ट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप समझो कि व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज़ सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज़ थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन क्या है? इज़ द पर्सन स्पीकिंग. सो आई एम स्पीकिंग, सो आई एम फर्स्ट पर्सन एंड आई एम टॉकिंग टू यू. सो you means you students, okay. So you are second person and I am talking about, or you can say I am telling you about this pencil. So it would be third person. So you are thinking कि ये pencil person क्यों है? But earlier it is already written here. I'll just mark it for you कि यहाँ पे
जो पर्सनल प्रोनाउन है इट वुड बी यूज्ड एज फॉर पर्सन और इवन थिंग के लिए एंड इवन पर्सन के लिए पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा. सो लेट्स टेक इट, आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग. ओके, सो अगेन इफ आई वांट टू गिव यू एग्जांपल कि मैं फर्स्ट पर्सन कैसे, इफ आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, ओके, अबाउट द माय अनदर फ्रेंड, यू कैन से कि मी एंड नेहा इज टॉकिंग. ओके, so here we are talking about might be my third friend named Ram. So we are talking about Ram, तो Ram is third person, I am the first person, and अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरी फ्रेंड जस्ट नेक्स्ट टू मी बैठी है तो वो हो गई सेकेंड पर्सन. और इवन अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है वो माइट बी थिंग हो सकती है और माइट बी पर्सन हो सकता है, कि जिसके बारे में बात हो रही है तो वो माइट बी पर्सन हो सकता है एंड थिंग हो सकती है. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस मोर विद दीज एग्जाम्पल. सो हेयर इट इज़ अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. ठीक है, यहाँ पे एक बात हो रही है दो फ्रेंड्स के बारे में. तो काव्या क्या है, काव्या एंड आशीष. तो यहाँ पे दो पर्सन्स आ गए. तो काव्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर रही है आशीष से, व्हाट कलर इज माई हैट. आशीष क्या कह रहा है, ब्लैक. तो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, दो पर्सन्स के बारे में बातें. और काव्या किसके बारे में बात कर रही है, हैट. तो हैट इज द थर्ड पर्सन, काव्या फर्स्ट एंड आशीष इज सेकेंड पर्सन. सो हेयर आगे अगेन कॉन्वर्जेशन होती है कि is it pink, no it's not, is it red, yes it is red. तो यहाँ पे it किसके लिए यूज हो रहा है, वापस हैट के लिए. तो काव्या आशीष दोनों बात कर रहे हैं और it किसके लिए लगाया है, हैट के लिए. तो it क्या है, प्रोनाउन एंड इवन थर्ड पर्सन की जिसके बारे में बात हो रही है. सो वील सी वन मोर एग्जाम्पल. सो okay, so from here, what is color of the mango. again यहाँ पे वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं किसके बारे में, अगेन मैंगो के बारे में. तो हेयर विशाल एंड एकता. तो विशाल क्वेश्चन पुट अप कर रहा है एकता से. तो विशाल इज द फर्स्ट पर्सन, एकता से बात कर रहा है तो सेकंड पर्सन. और किसके बारे में बात कर रहा है, अबाउट मैंगो. तो मैंगो वुड बी थर्ड पर्सन. So here again you will see what color. Now Vishal again is talking to Ekta. What color of tomato? Ekta reply, it's red. तो tomato is the third person. tomato के लिए last again क्योंकि वो thing है तो it लगाया है. it again अगर मैं कहूँगी इस पूरे सेंटेंस में अगर आप ढूंढोगे कि इस क्वेश्चन एंड आंसर में ढूंढो कि प्रोनाउन क्या है तो इट आ जाएगा प्रोनाउन. एंड थर्ड पर्सन में क्या आएगा, अगेन इट. तो यहाँ पे टमाटो को क्योंकि रेफर कर रहे हैं और वो दोनों बात कर रहे हैं. तो विशाल इज फर्स्ट पर्सन, एकता सेकेंड, टमाटो इज थर्ड पर्सन. व्हाट कलर ऑफ आइसक्रीम. सो अगेन विशाल इज द फर्स्ट पर्सन, एकता इज सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज आइसक्रीम. सो हेयर यहाँ पे बेसिकली अपन ने थिंग्स देखी हैं ज़्यादा तो इसलिए इट यूज़ हुआ है. सिमिलरली अगर मैं ये क्वेश्चन अगर पुटअप करूँ कि फ्रॉम यू पीपल कि वाई मुकेश हैज़ंट कम टू स्कूल. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पुटअप क्या कर रही हूँ या मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से. तो यू आर द सेकेंड पर्सन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट उमेश कि उमेश आज क्यों नहीं आया. तो उमेश इज़ द थर्ड पर्सन. वाई ही डिडंट कम टू स्कूल. तो अगेन मैंने उमेश की जगह प्रोनाउन यूज़ कर लिया ही. तो उमेश जहाँ पे वर्ड आया क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ तो थर्ड पर्सन. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट उमेश बट यूजिंग प्रोनाउन ही तो ही भी आ जाएगा आपका अंडर द प्रोनाउन. सो हेयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर बॉय आएगा तो उसके लिए ही होगा, इफ़ गर्ल है तो शी, थिंग है तो इट. बट नाउ हेयर वी विल सी सिंगुलर एंड
प्लूरल मीन्स अगर मैं किसी एक जाने के बारे में बात करूँगी या एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा या सिंगल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे कौन से प्रोनाउन यूज़ होंगे। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल मीन्स दो या दो से ज़्यादा तो वहाँ पे क्या वर्ड्स यूज़ होंगे और यू कैन से कौन से प्रोनाउंस यूज़ होंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पर्सन अगर कह रहा है अगर वो यूज्ड एज सब्जेक्ट, ओके वो एज अ सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर में क्या आएगा, आई, मी, माइन, पोजेसिव फॉर्म इज माइन। एंड नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सेस और एम्फेसिसिंग फॉर्म। सो यहाँ पे आ जाएगा माई सेल्फ कि मैं उस अपने आप पे एम्फोसाइज कर रही हूँ तो इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग फॉर्म माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या है, ये सारे के सारे यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, आई, मी, माइन, माई सेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मैस्कुलाइन मीन्स मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फीमेल्स, बट हेयर इट डजेंट मीन्स जस्ट रिफर टू मेल एंड फीमेल कि कुछ भी मैस्कुलाइन में यूज़ हुआ तो आप आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ यूज़ कर सकते हो। एंड हेयर ऑल्सो इन फेमिनाइन, ओके। सो लेट्स सी प्लूरल अगर हुआ तो उसमें कौन से प्रोनाउन यूज़ होंगे, वी, अस, आर, आवरसेल्व्स। सो सेम रूल गोज़ फॉर जैसे माई सेल्फ के लिए था, सिमिलरली फॉर आवर सेल्फ। सो नाउ सेकेंड पर्सन अगर के बारे में बात हो रही है, अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना है और अगर सिंगल नाउन पर्सन है या सिंगल थिंग है तो आप क्या यूज़ करोगे, यू, योर, योर सेल्फ। सो सेम दीज प्रोनाउन you and yourself used for both masculine and feminine. If we come to plural कि अगर दो से ज़्यादा या दो के बारे में अगर बात हो रही है तो अगेन you, yourself। तो जो ये सिर्फ एक वर्ड यू है तो ये चेंज नहीं होता, जैसे अपन ने ऊपर देखा आई, मी, माइन, माई सेल्फ, तो यू कॉन्स्टेंटली सेम रहता है, बट जब पोजेसिव फॉर्म आती है तब चेंज होगा। और जब मैं अगर कुछ एम्फोसाइज कर रही हूँ, एम्फोसाइज मीन्स अगर मैं कहूँ कि यू आर गुड बॉय एंड इफ़ आई एम सेइंग योर सेल्फ, ओके, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं पर्टिकुलर कर रही हूँ डू योर वर्क योर सेल्फ, तो मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ कि ये वर्क तुम्हें ही करना है। सो लेट्स सी एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, ही एज अ सब्जेक्ट, कभी भी सब्जेक्ट अगर उसको यूज़ कर रहे हो थर्ड पर्सन को तो आएगा ही। इफ़ आई एम टॉकिंग, कैसे कि थर्ड पर्सन में अगर ही को कैसे यूज़ करूँगी, इफ़ आई एम सेइंग रमेश इज़ बैड बॉय, ही नेवर कंप्लीट्स हिज वर्क, तो यहाँ सिंगुलर आ गया। अगर यहाँ पे मैं करूँ प्लूरल में तो लास्ट में यू कैन सी दे, कैसे आएगा, उमेश एंड हिज फ्रेंड आर नॉटी, दे डिडंट कंप्लीट देयर वर्क, तो जहाँ पे मैं एक से हटके और भी उमेश के फ्रेंड्स के बारे में आई एम गोइंग सिंगुलर टू प्लूरल तो मैं वहाँ पे दे यूज़ करूँगी। सो लेट्स सी अगेन कम टू हेयर फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम हेयर, ही, हिम एंड हिज, हिमसेल्फ मैस्कुलाइन, और सिंगुलर में अगर मैं कहूँगी तो हर सेल्फ, तो यहाँ पे चेंज होगा, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। यहाँ पे मैं अगर कोई भी अगर लड़का लड़की या मैस्कुलाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ तो ये वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, बट अगर आई एम टॉकिंग अबाउट हिम सेल्फ तो ये सिर्फ मैस्कुलाइन के लिए लगेगा एंड सिंगुलर फॉर्म के लिए लगेगा। एंड अगर आई एम सेइंग हर सेल्फ तो इट वुड बी फॉर फेमिनाइन एंड सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म मीन्स अगेन जहाँ पे एक जाने के बारे में बात हो रही है और यू कैन से द सेकंड पर्सन और द थर्ड पर्सन इज सिंगल थिंग, और द थर्ड जो अपन थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर थिंग है
नॉट इवन पर्सन। अगर वो थिंग के बारे में भी बात आएगी तो हेयर इट इज़ रिटन इट। सो थिंग्स के लिए क्या यूज़ होगा? इट, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो चाहे वो सब्जेक्ट में हो। इवन पोजेसिव फॉर्म में क्या आ जाएगा? इट्स। तो आप पोजेसिव फॉर्म में क्या देखोगे? एक चीज़ कॉमन हेयर कि सब में लास्ट में एस आ जाता है। हिज, इट्स, योर्स, योरसेल्फ, सॉरी यू, आवर्स। तो बेसिकली ये इट इज़ अ ट्रिक, ओके, कि अगर आपको पोजेसिव फॉर्म फाइंड आउट करनी है, लिखनी है, तो बेसिकली उसमें एस आ जाएगा। सो लेट्स कम टू द प्लूरल। प्लूरल में क्या कहेंगे? दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स। सो अगेन देमसेल्फ क्या है? ऑल जेंडर्स की यूज फॉर बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। एंड इटसेल्फ के आगे क्या लिखा है? न्यूटर। तो न्यूटर मीन्स जो कि फेमिनाइन भी नहीं है, जो कि मैस्कुलाइन भी नहीं है। तो वो क्या होती हैं? बेसिकली ऐसी थिंग्स होती हैं जो कि ना मैस्कुलाइन होती हैं ना ही फेमिनाइन होती हैं। सो लेट्स सी द लास्ट लाइन। द नाउन which a person stand is called antecedent. A noun, a pronoun must agree with antecedent and its number, gender, etc. So here जो नाउन के जो नाउन को जो वर्ड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, वो उसको कहेंगे एंटीसीडेंट। एंड जो प्रोनाउन है दैट प्रोनाउन मस्ट अग्री विद एंटीसीडेंट्स, मीन्स उससे मैच करना चाहिए। जैसे अपन ने कहा है कि अगर मैस्कुलाइन होगा तो मैं हिमसेल्फ लिखूंगी, मैं हरसेल्फ नहीं लिख सकती। इफ़ आई एम यूजिंग ही तो मैं उसको आगे, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय तो मैं ही यूज़ करूँगी। जो एंटीसीडेंट है वो अगर ही है तो मैं सॉरी जो एंटीसीडेंट है अगर वो कोई बॉय है तो मैं उसके लिए ही यूज़ करूँगी। तो प्रोनाउन मेरा मैच करना चाहिए विद द एंटीसीडेंट एंड किसके और के साथ मैच होना चाहिए? विद इट्स नंबर एंड जेंडर। तो नंबर में क्या आ जाएगा? सिंगुलर एंड प्लूरल। जेंडर मैंने आपको बता दिया, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मैस्कुलाइन तो आप याद रखोगे कि हिमसेल्फ आएगा, हिज आएगा, हिम आएगा। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फेमिनाइन तो हर सेल्फ, हर, शी, सो ये वाले प्रोनाउन यूज होंगे। सो आई होप you understood well. You can see more examples on net. So thank you so much for listening. Stay safe, be at home. Thank you.